سب سے پہلے میں اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ہم سب کو اپنے گھر میں نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے حق جل مجدہ سے کہ ہم سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت 26ویں پارے کی ہے اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ بس جان لیجئے اے مخاطب، اور قرآن کے اول مخاطب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے سب سے پہلے اپنے محبوب کو ایک خطاب کیا ہے، اور حضور کے واسطے سے یہ خطاب پھر پوری امت کو ہے۔ گویا کہ اس جملے کے مخاطب رسول اللہ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور پر ایمان رکھنے والے ہر ایک امتی اس میں ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ قرون اولیٰ کا بندہ ہے، چاہے وہ اس دور کا بندہ ہے، چاہے وہ قرب قیامت کا بندہ ہے، اللہ سب کو خطاب کر کے فرماتے فَاعْلَمْ بس جان لو، انہو بے شک وہ اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کا بھی جز ہے، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پہلے کلمے کا پہلا جز یہاں پر ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ سورۃ فتح میں ہے۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکٹھا قرآن میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ الگ جگہ پہ ہے اور محمد الرسول اللہ الگ جگہ پہ ہے، اور اصل میں جو کلمہ طیبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اصل کے تابع ہے، اصل لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کے تابع ہے۔ اسی لیے جتنے بھی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رِّجَالٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، پہلی تو بات إِلَّا رِجَالًا، نبی آئے مردوں میں، نبی آئے کن میں؟ مردوں میں۔ عورتوں میں کوئی نبیہ بن کر نہیں آئی، عورت کوئی نبیہ بن بھی نہیں سکتی، یہ اللہ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا، نبی ہوتا ہے مبلغ، نبی ہوتا ہے تبلیغی، تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے نبی، اور وہ کبھی تنہائی میں لوگوں کو بلا کر تبلیغ کرتا ہے، اور کبھی مجمع عام میں نبی تبلیغ کرتا ہے، کبھی کبھی مردوں کو نبی تبلیغ کرتا ہے، کبھی عورتوں کو تبلیغ کرتا ہے، اور اگر عورت مبلغہ بن جائے یعنی تبلیغی اور یہ نبیہ بن جاتی تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہوتا، کیونکہ عورت کو پردے کا حکم ہے شریعت میں، ایسا ہے نہیں، تو اس لیے اللہ رجالن فرمایا، میرے محبوب آپ سے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے گئے اللہ رجالن، وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، اور آگے فرمایا نوحی الیہم، ہم نے ان سب کی طرف وحی کی تھی
किस बात की वही? अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की वही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद। इसलिए ये जो कलमा तय्यबा का पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हर दौर में यही रहा, ये बदला नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आप आदम अलैहिस्सलाम से देख, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ये आदम सफीउल्लाह, ये दूसरा जुज़ तो बदला, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं भी नहीं बदला। हाँ जी, किसी नबी को ये बात अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाई कि मेरे सिवा भी कोई माबूद है। हाँ, तमाम अदियान में, तमाम शरीयतों में, हाँ जी, तमाम दीनों में ये बात मुश्तरका रही। हर नबी की तरफ अल्लाह ने ये बात वही की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, बोलो भाई, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह में तब्दीली नहीं आई। जो दूसरा जुज़ है जो कि फरा था, असल के ताबे था, वो बदलता रहा, नबी आते रहे। हाँ जी, तो नबी की सिफात को लेकर अल्लाह उस जुज़ को तब्दील करते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जी मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ जी, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो दूसरा जुज़ है ये तो तब्दील हुआ, पहला जुज़ कभी भी तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन का ये निज़ाम बनाया है, तब से अल्लाह ने ये वही की है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़, बोलो भाई, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पर भी यही फरमाया जा रहा है, फ़अलम, बस मेरे महबूब आप जान लो। और हुजूर के वास्ते से उम्मत को खिताब, ऐ उम्मती, मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, जवान हो, सब इस अल्लाह के हुक्म को जान लो, इस पैगाम को जान लो कि अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कलमा तय्यबा का जुज़ है। और कुरान पाक में इस कलमा की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह फरमाते हैं वमसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। अल्लाह ने कलमा तय्यबा की मिसाल बयान की। अल्लाह फरमाते हैं और मिसाल कलिमा तय्यबा की, ये सूरत इब्राहीम है, 13वां पारा है। अल्लाह ने मिसाल के जरिए कलमा तय्यबा की वजाहत की। कलमा तय्यबा आप भी कहते हैं, पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस यहाँ पर फरमाया जा रहा है वमसलु कलिमतिन तय्यबतिन, अल्लाह फरमाते हैं और मिसाल कलिमा तय्यबा की कशजरतिन तय्यबतिन, फरमाया उस दरख्त की सी है, तय्यबतिन जिसका फल पाकीज़ा हो, जिसका फल क्या हो भाई? पाकीज़ा हो, और अस्लुहा साबित, और जिसकी जड़ें मजबूत हो, व फरउहा फिस्समा, और जिसकी शाखें आसमान में हो। हाँ, जिसकी शाखें आसमान में हो, और वो दरख्त ऐसा हो, अल्लाह फरमाते तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, कि जो अपना फल ले हर वक्त, कुल्ल हीनिन, हर जमाने में। हाँ जी, हर जमाने में वो फलता फूलता दरख्त हो। हाँ, किसी मौसम में भी उस फल का जो है ना, उस दरख्त का फल जो है वो मक़तू न होता हो। हाँ, और ये इस जैसे जो दरख्त होंगे वो जन्नत में होंगे। कहाँ होंगे? जन्नत में। हाँ, कुरान कहते हैं ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, जन्नत के जो दरख्त होंगे उसके ऊपर जो फल होंगे वो तोड़े हुए नहीं होंगे। गोशा हो ना, फल का गोशा, आप उससे तोड़े तो वो बेऐब हो जाता है, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। हम तोड़ेंगे मिन्नुआन, उसी वक्त दूसरा फल वहीं पे लग जाए। बात समझ आई? ला मक़तूआ, कुरान कहते हैं वो तोड़े हुए नहीं होंगे, वला ममनूआ, और न रोके हुए होंगे, जितना खाओ दिल करे उतना आपको मिलेगा। तो कलमा तय्यबा की मिसाल अल्लाह दे रहे हैं
उस पाकीज़ा दरख्त से जिसकी जड़ें ज़मीन पर में पैवस्त हूँ, जकड़ी हुई हूँ, मजबूत हूँ। व फरउहा फिस्समा, और आसमानों के अंदर उसकी शाखें फैली हुई हूँ। हाँ, इस ज़मीन से मुराद मुसलमान का दिल है, जिसमें कलमा तय्यबा की जड़ें गड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कलमा तय्यबा और इस कलमा तौहीद पर मुसलमान का ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई बंदा सीने को चीर करके इस सीने से दिल खींच करके टुकड़े टुकड़े तो कर दे, लेकिन वो जो जड़ है ईमान की और कलमा तय्यबा और कलमा तौहीद की इस दिल में पैवस्त है, वो निकले। बोलो भाई, वो जड़ें ना निकले। कुरान ने इसको कहा, और कुरान ने जो ये मिसाल दी ना कि कलमा तय्यबा की मिसाल एक दरख्त जैसी है, जिस दरख्त का फल हर वक्त आता हो। हम ये कलमा तय्यबा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसके फल आपको पता है क्या है? इसके फल और समरात वो नेक आमाल है। वो क्या है भाई? नेक आमाल। और नेक आमाल के बारे में कुरान कहते हैं इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब। अल्लाह फरमाते हैं कि नेक आमाल तुम्हारे पाकीज़ा बातें, पाकीज़ा कलिमात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये सब पाकीज़ा कलिमात है। जब इधर से जुबान से निकलते हैं तो फरिश्ते इनको मुबारक हाथों में रेशम के गिलाफों में ले लेते हैं और फिर ऊपर चढ़े जाते हैं। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब। कुरान कहता है ये तुम्हारे पाकीज़ा आमाल आसमानों पर चले जाते हैं, और फिर जब जैसे आमाल होते हैं ना ऊपर से वैसे फैसले आते हैं, समरात आते हैं। वहां से हम नेक अमल करके इधर से भेजते हैं तो ऊपर से अल्लाह अच्छे फैसले करता है। आजकल ये जो परेशानी है ना माइशत की, रिज़्क की, रोजी की, इसकी बड़ी वजह हमारी बदअमली है। ये बदअमली का हम शिकार हैं, जिसकी वजह से हम घरों में परेशान हैं। हम अपने आप को सुधारने, कलमा तय्यबा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, फिर देखें जिंदगी में सुकून आता है कि नहीं आता। हाँ, इधर से हम पत्थर भेजते हैं, ऊपर से वापस भी क्या आते हैं? पत्थर। हम यहाँ से फूल फेंकेंगे ना इंशाअल्लाह तो वापस भी क्या आएंगे? बोलो, क्या आएंगे? फूल आएंगे। और कुरान ने इसी को बयान किया कि कलिमा तय्यबा जो है कशजरतिन तय्यबा, हाँ, ये पाकीज़ा दरख्त है, तूती उकलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये दरख्त ऐसा है जो हर मौसम में फल लाता रहता है, बिइज़्नि रब्बिहा। इस दरख्त की परवरिश फिर तेरा रब करता है, बिइज़्नि रब्बिहा। हाँ जी, अल्लाह फरमाते हैं वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल। अल्लाह ने कलमा तय्यबा की ये मिसाल खुद बयान की कुरान में। क्यों बयान की? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि इस मिसाल से तुम कलमा तय्यबा के फजीलत को समझो। लअल्लहुम यतज़क्करून। और कुरान कहते हैं वमसलु कलिमतिन खबीसतिन। अल्लाह ने कलमा खबीसा की भी मिसाल बयान की। जैसे मैं कह रहा था, हम यहाँ से पत्थर भेजेंगे तो वापस क्या आएंगे? बोलो, क्या आएंगे? पत्थर। कुरान भी इसी चीज का जिक्र कर रहा है। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, फरमाया मिसाल कलमा खबीसा की, गंदी बात की। और सबसे गंदी बात अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। सबसे बुरी बात अल्लाह की जात और सिफात में गैर को शरीक करना है। बात समझ आ रही है? वमसलु कलिमतिन खबीसा, फरमाया कशजरतिन खबीसतिन, उस खबीस दरख्त जैसी है, निजतुस्सत मिन फौकिल अर्ज़, जिसकी जमीन के अंदर कोई मजबूती ना हो। हाँ जी, कुरान ने इसीलिए शिर्क को फरमाया व इन औहनल बुयूति लबैतिल अनकबूत। फरमाया मुशरिक की मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी जाला तनती है, थोड़ी सी हवा आई तो वो जाला उड़ गया, खत्म हो गया। फरमाया इसी तरह समझो मुशरिक का अकीदा है कि अल्लाह के अलावा जिसको वो कारसाज समझता है, अल्लाह के अलावा जिसको वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझता है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। जो ये कहता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही दाता है, अल्लाह ही मौला है, अल्लाह ही हक है, तो फिर देखो
इस अकीदे की बिना पर अल्लाह रंग लगा दे। अल्लाह क्या लगाएंगे? इंशाअल्लाह रंग लगा देंगे। तो बहरहाल ये कलमा तय्यबा है, और कुरान ने इसी को एक मकाम पे कलमा तक़वा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं वो अलज़महुम कलिमत तक़वा। हाँ, सहाबा की अल्लाह ने तारीफ की कि हमने कलमा तक़वा उनके साथ लाजिम कर दिया था, ऐसा लाजिम किया था। लाजिम का माना जोड़ देना, कि वो कलमा तय्यबा के साथ, कलमा तक़वा के साथ ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे मजबूत थे कि बड़ी बड़ी आंधियां चली लेकिन वो गिरे नहीं, उखड़े नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो इस तरह के मजबूत थे। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आप देखो, हाँ, अबू जहल ने तपती हुई रेत पर लिटाया और फिर कहा कि ए बिलाल, जब तक तू कलमा नहीं छोड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ेगा, उस वक्त तक इसी तरह तुझे सजा देते रहेंगे, तुझे पीटते रहेंगे। हाँ जी, सैयदना बिलाल थे, इस कलमा को ऐसा सीने से लगाया, हाँ जी, तपती रेत पर उनको धूप के अंदर मक्का की गर्मी में लिटाया गया जी, ऊपर से कोड़े मारे गए और सीने पर भारी चट्टान रख दी गई, और ये कहा जा रहा था बिलाल ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दो, लेकिन उनकी जुबान से पे था अहद अहद अहद। मैं उस एक अल्लाह को मानता हूँ। इस सीने से तुम रूह को तो निकाल सकते हो, लेकिन इस सीने से अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। इसे कहते हैं वो अलज़महुम कलिमत तक़वा। हाँ, हजरत ज़न्नीरा की आंखें निकाली जी मुशरिकीन मक्का ने, लेकिन हजरत ज़न्नीरा आंखें तो दे बैठी लेकिन दिल से कलमा न गया। हजरत सुमैया को 2 लख्त किया अबू जहल ने, हाँ, 2 ऊंटों को हजरत सुमैया की 2 टांगों के साथ बांधा, मुखालिफ सिमत दौड़ाया। हाँ जी, वो 2 लख्त हो गई, 2 टुकड़े तो हो गई। कुरान कहता है वो अलज़महुम कलिमतुत तक़वा। हाँ जी, ये तक़वा के कलमे को अपने साथ लाज़िम रखने वाले थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, चूँ मैं गोयम मुसलमानम बलरज़म, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं तड़प जाता हूँ। हाँ, मैं तड़प जाता हूँ कि दानम मुश्किलात ला इलाहा ला, मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुसलमानों को क्या क्या मुश्किलात झेलनी पड़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया, हम कामिलुल ईमान हो गए, कामिलुल मुसलमान हो गए, ऐसा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर जब अल्लाह ने जिक्र किया ना, फ़अलम पहले फरमाया, फ़अलम, मेरे महबूब जान लो, सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको, इसके माने और मतलब को भी जानना है। और ये कलमा तय्यबा के फराइज में से ये फर्ज है। हाँ, सिर्फ जुबान से जो बंदा पढ़ ले ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के माने का पता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अरबी है चाहे अजमी है, वो मुसलमान नहीं। मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि इस कलमा तय्यबा को पढ़े और उसके माने पर गौर करे कि मैं कह क्या रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर चीज की नफी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में हर गैर की क्या हो रही है भाई, बोलो, नफी हो रही है। ला इलाहा नहीं है कोई इलाह, हाँ, आसमानों में ना जमीनों में, यहाँ तक कि अपने नफ्स की भी नफी है, नफ्स की भी नहीं माननी, माननी है तो किसकी? अल्लाह की। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, मेरे महबूब आपने उस बंदे को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया। ला इलाह जब ये बंदा कहते हैं ना, तो इसमें हर चीज की नफी, अपने नफ्स की भी नफी हो जाती है, मैं भी कुछ नहीं। और अंबिया कराम अलैहिस्सलातु तस्लीम, वैसे तो सारे के सारे कामिलुल ईमान गुजरे हैं, सारे के सारे नबी कामिलुल ईमान थे, बल्कि सिर्फ कामिलुल ईमान नहीं, बल्कि आगे उनके जरिए से ईमान पहुंचा। बात समझ आई? लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ा कमाल था। उन्होंने ला इलाहा इस नफी में, हाँ, नफी के अंदर उनको बड़ा कमाल था। आप सोचेंगे कि वो कैसे? कुरान खुद कहता है इन्न इब्राहीम कान उम्मह, इन्न इब्राहीम कान उम्मह। अल्लाह फरमाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कि वो एक उम्मत थे,
और आगे फरमाया कि क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। और आगे फरमाया वलम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। अब जिसको अल्लाह कह रहे हैं, जिसकी नजर दिलों पे है, उनके अंदर कितना तौहीद होगी। और फिर उनके अहवाल आप जब देखेंगे ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल, हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि खलील थे ना, खलील का माना होता है दोस्त, दोस्त को फिर कभी आजमाया जाता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम थे हबीबुल्लाह। जब मेराज वाली रात हुजूर अलैहिस्सलाम गए ना अर्श मुअल्ला पे, तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे या अल्लाह आपने आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीयुल्लाह बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, अल्लाह मुझे क्या दिया? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आप हबीबुल्लाह, आप क्या है? हबीबुल्लाह है, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। तो खलील और महबूब में ये फर्क है, दोस्त को चेक किया जाता है पक्का है या कच्चा है, और महबूब को चेक नहीं किया जाता। महबूब तो महबूब होता है ना, उसको दिया जाता है। जैसे अल्लाह फरमाते वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, फतरदा, आप बस करेंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने माना इसका फतरदा का ये किया, मेरे अल्लाह बस करे। जिस तरह क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे सल तोता, मेरे महबूब मांगो मैं दूंगा, कहो सुभान अल्लाह। ये फरमाया सल तोता, मेरे महबूब मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। इश्फा तु शफ़ा, मेरे महबूब शफात करना तेरा काम है, और शफात मांगना मैं अल्लाह का काम है। हाँ, ये है हबीब। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हुजूर का दिल कर रहा था कि मैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला क्यों नहीं मेहरबानी करते कि जो हमारा खाना काबा है बैतुल्लाह, हम इस तरफ मुंह करके क्यों ना नमाज पढ़े। अभी दिल में ये बात थी, और हुजूर की नजरें आसमान की तरफ उठ रही थी, हाँ, कि दिल में अल्लाह से बातें कर रहे थे। हुजूर कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, कुरान कहते मेरे महबूब आपकी जो नजरें बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी, मैं अल्लाह आपको देख रहा था, मैं अल्लाह आपको देख रहा था। फिर इसी असना में अभी नमाज में थे हुजूर अलैहिस्सलाम, हुक्म आया फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हाँ, मेरे महबूब आप अपना किबला बदल दीजिए, अब बैतुल मुक़द्दस से अपना किबला बैतुल्लाह कर लीजिए। अब ये क्या था? ये मोहब्बत थी, अभी दिल में सोचा ही था, उधर से फैसले हो गए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हबीब को दिया जाता है, खलील को आजमाया जाता है, दोस्त को आजमाया जाता है, पक्का है कि कच्चा है। एक दिन खुद फरिश्ता अल्लाह की दरबार में पहुंचे और जाकर अर्ज करते हैं कैफ़ कुन्ता खलीला, अल्लाह आपने अपने इब्राहीम के मुतल्लिक कहा कि वो मेरा दोस्त है, खलील है, कैफ़ कुन्ता खलीला। हाँ जी, आपको अल्लाह ने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, आपको अल्लाह ने खलील कैसे किया, खलील कैसे बनाया? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे बदलतु नफ्सी लिन्नीराना व वलदी लिलकुर्बाना व माली लिज़ैफ़ाना वहाना खलीलुर रहमाना। फरमाया जब मेरे रब ने कहा इब्राहीम आग में कूद जा, हाँ, मैंने आग में अपने आप को पेश कर दिया। जब कहा अपने अकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी चला दे, मैंने वो छुरी चला दी। और जब कहा अपने माल को मेहमानों के लिए, आने वालों के लिए खर्च करो, मैंने उस वक़्त तक खाना न खाया जब तक किसी मेहमान को तलाश करके अपने दस्तरखान पे न बिठाया। हाँ, जब मैंने अल्लाह के हर हुक्म में साबित कदम होके मैं आगे बढ़ता रहा, वहाना खलीलुर रहमाना, उस वक़्त में रहमान का खलील बन गया, उस वक़्त में रहमान का खलील बन गया था। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ला इलाहा में इतना कमाल था, इतना कमाल था। जब कौम गई ना अपने मेले पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगी आप भी चलिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान कहते हैं फ़क़ाल इन्नी सकीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं जाता, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे इस शिरक वाले आमाल को देख देख कर ना दिल के अंदर बड़ा परेशान रहता हूँ, तुम चले जाओ। सब जब चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत वाड़े में घुसे, कुरान कहते हैं फजअलहुम जुज़ादन, हाँ,
उन सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फजअलहुम जुज़ाज़न, लेकिन जो उनका इंटरनेशनल खुदा था ना, बड़ा खुदा, हाँ, जो छोटे खुदा भी उस खुदा के ताबे थे, इल्ला कबीर लहुम, उनको छोड़ दिया, उनके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा, वापस चले आए। जब वापस आई कौम देखती है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश हो चुका, हाँ, हमारे खुदाओं की टांगे टूटी पड़ी है, हाँ, तो कहने लगे वंसुरु आलियातकुम, अक्ल दे अंधे इतना हन, वंसुरु आलियातकुम, आगे लगे यार अपने खुदाओं की मदद करो। साडा खुदा तो है जरा इंसान दी क्या करेंगे मदद, जेरे वाले अक्ल ते परते आवे ना बल इहो समया गाली बल बंदा करे वंसुरु आलियातकुम, वे अगर तुसा चाहते वे कि अपने खुदावां दी मदद करूं तो बल ई कातिल को बोलो कई कत्ल किते, हाँ जी, वंसुरु आलियातकुम इन कुंतुम फाइलिन। आपस में आगे आता है, कुरान कहता है आपस में कहने लगे समिअना फतन, हम एक जवान का सुनते हैं, यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, जिनको इब्राहीम कहा जाता है, जिनका नाम क्या है इब्राहीम है, वो हमारे इन बुतों का गलत तज़किरा करता है, लगता है ये उसी का काम है। पुलिस पहुंच गई, बादशाह की तरफ से वारंट गिरफ्तारी हुई, हाँ जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ अपने घर में मौजूद थे, वहां पर पुलिस पहुंची, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया, बुत्तू के सामने इब्राहीम ये आपने किया है? जवाब दिया नहीं मैंने नहीं। काल बल फ़अलहु कबीरुहुम, और ये जो बड़ा ठहरे ना इनसे पूछो, ये काम उसका होगा जिसके हाथ में कुल्हाड़ा है, असला है ना, मुजरम भी वही होगा। लगता यही है बड़े खुदा को गुस्सा आया है जिसकी वजह से सारे छोटे खुदाओं का उसने सत्यानाश कर दिया है, लिहाजा इसकी तरफ मुतवज्जो हो। तो आपस में कहने लगे इब्राहीम तू जानता तो है कि ये न सुनते हैं न समझते हैं न जवाब देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, हाँ, कुरान कहते हैं ना उफ़्फ़िल लकुम, जिसका माना है थक के तोड़े हया, हाँ, उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तोड़े उत्ते जेरे न सुन दिल न समझ दिल न अपने आप को बचा सकदन न अपने आप को बचावन दी ताकत रख दिल, तुसो हुने को खुदा समझ दे। उफ़्फ़िल लकुम वली मा ताबुदून, भल तुसे इन्हां दी क्यों इबादत करें दे वे जेरे सुनते नहीं समझते नहीं। हाँ जी, तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जुर्म के अंदर जब दलील में वो लाजवाब हुए ना, तो उन्होंने कहा इस तरह करो, हर्रिकूहु, इब्राहीम को जला दो, आग में क्या करो जला दो, वंसुरु आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। जिसने मदद करनी है वो इस तरह करे, वो लकड़ी इकट्ठी करे। कई माह तक लकड़ी इकट्ठी होती रही, औरतें मन्नत मान रही थी उस वक्त, हमारा बच्चा पैदा हो हम इतनी लकड़ियां इस चिखे में डालेंगे, रिवायत में ये बात आती है। हाँ, तो इस तरह उनके लिए चिखा बनाया गया। मैं ये सारा सफर इस एक जुमले के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब चिखा जला दिया गया, वो आग इतनी शदीद थी कि कोई उसके करीब नहीं जा सकता था, कई मील लंबी आग थी, हाँ जी, और ऊपर से भी डालना बड़ा मुश्किल था। और उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, अब उन लोगों के लिए बात मुश्किल हो गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाले तो कैसे डाले। उन्होंने फिर एक पींघा बनाया, मिन जिनीक जिसे कहा जाता है, झूले के जरिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाकर उस आग में डाला गया। अब अल्लाह अकबर कबीरा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी आग में पींगे में झूले में बिठाकर डाला जा रहा था, तो आसमानों पे कोहराम मचा हुआ था। जिब्रील कह रहे थे, मीकाईल कह रहे थे, इसराफील और इज़राइल कह रहे थे कि रब्बे करीम तेरे खलील के साथ ये कुछ हो रहा है, अल्लाह तो इनको नेस्त व नाबूद क्यों नहीं कर देते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जाओ इब्राहीम से पूछो, अगर वो तुमसे मदद मांगता है, हाँ, तो तुम उनकी जाओ मदद करो। तो चुनाचे जिब्रील अमीन आए, जो हमेशा नबियों की मदद के लिए आया ही करते थे। हाँ जी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नजर थी ला इलाहा, किस पे भाई? ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। जब आए ना जिब्रील, कहने लगे हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस जात के लिए मैं जान दे रहा हूँ, हाँ, जिस जात पे मैं कुर्बान हो रहा हूँ, हाँ, वो रब मेरे हाल को बखूबी जानता है,
اس لیے جب اللہ جانتا ہے تو میں کسی سے کوئی سوال مدد کا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور آگے جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. ہاں جی، محمد الرسول اللہ. یاد رکھو لا الہ، یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ، اسے کہتے ہیں کلمہ. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، اس میں اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی گئی. لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ رسالت. لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کہنے سے بھی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان نہیں جب تک وہ یہ نہ کہے محمد الرسول اللہ. ہاں، محمد الرسول اللہ بندہ کہے گا تو پھر وہ جا کر کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے. اور کس طرح کا ایمان ہو؟ حضور علیہ السلام پر، کلمہ توحید پر ہمارا ایمان ہو. کس طرح کا؟ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ ایمان اس طرح ہونا چاہیے. قرآن کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، پھر اپنے کلمے کو اس طرح سنوار لو، کلمے کو اس طرح بنا لو کہ اگر آگے باپ آتا ہے، بیٹے آتے ہیں، قبیلہ آتا ہے، خاندان آتا ہے، جی تمہاری تجارت اور معیشت آتی ہے، تمہاری کھیتی باڑی آتی ہے، ہاں جی پوری دنیا اس کے مقابلے میں آتی ہے، تو پھر تم سب کو چھوڑو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھو، پھر جا کر تمہارا ایمان بھی جو ہے منظور ہے، مقبول ہے، وگرنہ تمہارا ایمان بھی مقبول ہے. تو اس لا الہ الا اللہ پر ہم ثابت قدمی اختیار کریں، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ جل جلالہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. کتنا بڑا کلمہ ہے. جو یہودی ہیں اس وقت، جو عیسائی ہیں اس وقت، جو بت پرست ہیں اس وقت، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے مسلمان بچ گئے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے مسلمان کیا ہو گئے؟ بچ گئے. باقی عارضی طور پر جو بندہ جہنم میں جائے گا گناہوں کی سزا کے لیے، اس کے لیے تھوڑی جد و جہد ہے، محنت ہے، بندہ اپنے اعمال بنائے سنوارے، انشاءاللہ عارضی طور پر بھی جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے لیے اعمال صالحہ کی بات سمجھ آئی. وہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اہل ایمان بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اعمال بد کے نتیجے میں جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم میں رہ رہے ہوں گے، ایک زمانہ دراز گزر جائے گا کہ وہ جل جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. اللہ بچائے. ہاں جی، جل جل کے کوئلہ ہو جائیں گے اور جہنم میں رہ رہے ہوں گے. اسی اثناء میں حضور نے فرمایا کچھ مشرکین ان مومنین کو تانا دیں گے اور کہیں گے نحنو من اہل اللات والحبل، ہم تو لات اور حبل والے ہیں اور تم تو کلمہ والے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، ہاں تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ اور یہ اللہ جو سمیع بصیر ذات ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. ان کے اس جملے کو اللہ سن لیں گے. حدیث پاک میں آتے فغضب اللہ، اللہ کو جلال آئے گا کہ میرے کلمہ گو کو یہ تانا دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دروغ نار کو کہیں گے، دروغ جہنم کو کہیں گے جس بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی تھا،
फरमाया उसको निकालो, उसको क्या करो, जहन्नम से निकालो। उनको निकाला जाएगा जहन्नम से। और फिर जब देखेंगे ना मुशरिकीन, काफिरीन, फासिकीन, फाजिरीन, हाँ, जब ये देखेंगे कि उन अहले ईमान को जिनके दिल में ईमान की एक रत्ती थी, आज अल्लाह उनके लिए फैसला फरमा रहे हैं कि जन्नत में ले जाओ। हाँ, तो हदीस पाक में आता है, कुरान की आयत है, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। हाँ, उस वक़्त काफिर लोग इस बात की को पसंद करेंगे, तमन्ना करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। आज ये कलमा हमें निजात देता, ये कलमा क्या देता, हमें निजात देता। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत दी है। हाँ जी, ये कलमा तय्यबा की बरकत से हम जहन्नम से निकलेंगे। हदीस पाक में आता है, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगे, क्योंकि वो कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार रहते थे, गुफ्तगू भी क्या करते थे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैका भी सवाल कर डाला था, मुझे अपनी जियारत कर अल्लाह। हाँ जी, तो एक दिन सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ए करीम अल्लाह, मुझे कोई खास अपना जिक्र बता, हाँ, जो मैं करूं मेरे सिवा कोई ना करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐसा तो कोई जिक्र नहीं जो इस तरह का हो, लेकिन जो सबसे बेहतरीन जिक्र है ना, वो आपको ना बता दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह क्यों नहीं, वही बता दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे कलीम आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहने लगे कि या अल्लाह, ये जो कलमा है ये तो सारे पढ़ते हैं, मैं तो कोई खास कलमा पूछ रहा हूँ। फरमाया, मेरे कलीम यही वो कलमा है, अगर इसको तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दुनिया व माफीहा, जो कुछ दुनिया में है, फरमाया एक पल्ले में रख दिया जाए, फिर तोला जाए, वजन किया जाए, फरमाया जिस पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह है वो पल्ला झुक जाएगा और दुनिया सारी हवा में उड़ जाए। हाँ, ये इतना वजनी कलमा है, इतना भारी कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पे अमल करें। कलमा तय्यबा हमने पढ़ा है, ये नेमत बहुत बड़ी नेमत है जो हमें हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें कलमा तय्यबा के तकाज़ों को, इनके शराइत को अल्लाह हमें पूरा करने की तौफीक दे। हमें इखलास के साथ और मोहब्बत के साथ और इनक़ियाद के साथ, इताअत और फरमाबरदारी के साथ इस कलमे को अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि।